So like yesterday we have gone through the parametric test, statistical inference by using the parametric test. So parametric test especially like Z test, T test, फिर इसके बाद में आपका F टेस्ट जो भी एनोवा में हम जो यूज करते हैं, और एक टेस्ट मैंने जो कल किया था वो थोड़ा काई स्क्वायर टेस्ट जो था, ठीक है। इसकी हमने बेसिक्स एजम्पशंस देखी थी, यूजेस देखे थे, और किस तरीके कंडीशंस अगर हैं तो हम किस टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलर कंडीशंस में विदाउट एनी एजम्पशंस और स्मॉल सैंपल साइज के लिए जो दूसरे टेस्ट होते हैं जिसको हम कह रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सही है। सो थोड़ा सा बेसिक अगर हम देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होता है कि हैव ए रिक्वायरमेंट अबाउट द नेचर और शेप ऑफ द पॉपुलेशन that is involved. Okay, non-parametric do not require the samples come from a population with the normal distribution or have any other particular distributions. Consequently, the non-parametrics are called the distribution free test. Okay, so ये कोई एक इसकी बाउंडेड रिक्वायरमेंट नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो किसी पॉपुलेशन को, कोई पॉपुलेशन जो है वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, जैसे कि बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, ज्योमेट्रिक है या फिर नॉर्मल है ना, कोई जरूरी नहीं है। ओके, फिर इसकी कुछ एडवांटेजेस देयर आर सम एंड देयर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो देयर। नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स कैन बी अप्लाइड टू वाइड वैरायटी ऑफ सिचुएशन बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी द मोर रिच रिक्वायरमेंट ऑफ द corresponding parametric methods. In a particular, like non-parametric method do not require normally distributed population. Unlike parametric methods, non-parametric methods can often be applied to categorical data such as gender of survey respondent. Non-parametric methods usually involve simpler accomplishments than the corresponding parametric methods because they have the small sample size like 10, 5, 6 इस तरीके का sample size है, तो वहाँ पे हम लोग easily understand इसको कर सकते हैं। Disadvantage, what the disadvantage is, non-parametric methods tend to waste information because exact numerical data are often reduced to a qualitative forms. Okay, so non-parametrics are not as sufficient as parametric tests. So with a non-parametric test, we generally need stronger evidence such as the large samples or greater differences before we reject a null hypothesis. So basically, because of small sample size, we can't generalize that samples to whole population, but we can get an idea. So that's why in life sciences, mostly we use the non-parametric test, because then whenever we go for any real life experiment, like suppose any drug, so if we are using any drug, new drug we want to invent, so we'll give a very small sample only. Okay, or there are a lot of the example where we have take very small 4, 5, 6 samples only. Okay, and then how we ranking, that we already know that things, or most of the median that non-parametric test used median as compared to the mean, because mostly we use the categorical data, okay, or qualitative data. Okay, so the data is stored when they are arranged according to some criteria such as the smallest to largest. A rank is a number assigned to an individual sample item according to its order in the sorted list. The first item is assigned as first rank and last there is last rank only. So if one way, that is that we have sorted the data and we have given the ranks, but the problem is come when we have the tied data. Okay, so what the rank we have given? Suppose that if you see here, all the ranks were like this one, but if suppose any data is matching, suppose here 12, 5, okay, then what the rank we have given? So as the many times the data is repeating, we give the array, we take the mean of that one only. Suppose if 5 repeating 3 times, so as usually if we they give the rank, suppose 4, 5, 6, 7, then we'll give the rank 1, 2, 3, 4, 5. But because it's repeating the number, so we'll take the mean of all these values, 5, 5, 5. So 15 divided by 3. So whatever the number will come, mean value will come, that will be our rank only. Okay. So here first rank we have given first number, then second, third, fourth. But we'll take the mean, all these values only, 2, 3, 4. So and whatever the value will, mean value will come, we'll give for that rank only here. Okay, and then if another number not repeating, we'll give that rank here only. Okay, उसके बाद में फिर वही 12 में अगर हमारा जाकर रिपीट हो रहा है दूसरा नंबर, how many times is number repeating and the rank is what the rank only. Okay,
It's clear here because most of the time it will come like this only. सॉर्टेड डेटा में 555 है और प्रिलिमिनरी रैंकिंग में 2 3 4 है। ये 2 3 4 का मीन क्यों लिया, 555 क्यों नहीं लिया? इस 55 का हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमको रैंक हमारी हमारा रैंक हमको देना है, हमको नंबर नहीं देना है। वी आर अगर 55 का लेते हो नंबर कितना आएगा, 5 ही आएगा, सही है। तो हमारी रैंक रैंक इसकी अब इनको हमको कौन से को किसकी रैंक देनी है, क्योंकि पांचों बराबर हैं। तो क्या करेंगे, अगर कोई चीज सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा ये करते हैं कि बराबर बराबर देंगे। ठीक है, अगर दो क्लास में दो टॉपर हैं, दोनों को सेम नंबर से, तो क्या करेंगे, या तो बराबर, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, दोनों को ज्वाइंटली दे दो, है ना। तो इस तरीके से रैंक को हमने मीन लिया है, नंबर्स का मीन नहीं लिया है। बट रैंक कौन सी रैंक होंगी वो हम पहले असाइन करेंगे। जैसे एक्चुअल में अगर यहाँ पे इसे 5 6 और 7 होता तो हमारी रैंक क्या होती, 1 2 3 4 होती, सही है। तो इसीलिए पहले हम उसको एक एक्चुअल रैंक देंगे और उस रैंक का मीन लेंगे। ओके, जैसे लास्ट में 12 आया तो अप टू यहाँ तक क्या हो गया था, 6 रैंक डिवाइड हो गया था। अब हमारा कौन सा बचा था, 7 और 8, 7 और 8 दिया। अब इसको हमने फिर मीन लिया तो उन दोनों को 7.5 रैंक दे दिया। ओके, तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट सॉर्टेड डाटा का मतलब क्या? सॉर्टेड डाटा विच अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सही है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसा भी आप अपने अरेंज करना चाह रहे हैं डेटा को, बट शॉर्ट कर रहे हैं हम डेटा को, सही। तो इसमें नॉन पैरामीट्रिक में एक सबसे सिंपल जो हमारा टेस्ट है जिसको कहते हैं साइन टेस्ट। मतलब इसमें क्या है कि जस्ट गिव द साइन ओनली, इट्स नॉट गिविंग द रैंक ओनली, some plus minus sign they have give, but that is the same way only. So what the main objective of the test is, the main objective of this section is test is to understand the sign test procedure which involve the converting data values to plus and minus signs, then testing for the distributive more of the even either sign, which sign is more only. Okay, तो इसका लाइक कुछ इसका तरीके डेफिनेशन से, साइन टेस्ट इज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट दैट यूजेस प्लस एंड माइनस साइन टू टेस्ट डिफरेंट क्लेम्स। तो अब क्लेम्स, डिफरेंट क्लेम्स मतलब क्या होगा, जैसे अगर आपने देखा होगा हम जो हमारा पैरामीट्रिक था उसमें क्लेम्स हमको जो सिंगल क्लेम होता था, सही है, यानी सिंगल पॉपुलेशन है तो वहां पे भी क्लेम होता था। उसी का एक तरीका से ये नॉन पैरामीट्रिक है, जेड टेस्ट का और टी टेस्ट का। वहां पे जो टेस्ट हमारे यूज होते थे, अगर लार्ज सैंपल साइज है, नॉन वेरिएंस है तो हम जेड टेस्ट यूज करते थे, स्मॉल सैंपल साइज है, अननोन वेरिएंस है तो हम टी टेस्ट यूज करते थे। उसी का एक सिंगल वैल्यूज के लिए कंपेयर करने के लिए नॉन पैरामीट्रिक में हमारा साइन टेस्ट है। ओके, सो लाइक क्लेम्स इन्वॉल्व मैच्ड पेयर ऑफ द सैंपल डेटा, क्लेम्स इन्वॉल्विंग नॉमिनल डेटा, क्लेम्स अबाउट द मीडियन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन। तो ये तीनों चीजें क्या होंगी, सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल सैंपल होगा हमारा। ओके, the basic idea underlying the sign test is to analyze the frequency of plus and minus sign to determine whether they are significantly different or not. Okay, इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी है यहाँ पे। द सैंपल डेटा हैव बीन रैंडमली सेलेक्टेड, ये कुछ इसकी जो कंडीशंस हैं कि हमारा जो है कि हम ऐसा नहीं, जो हमने अभी कहा था डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं है, बट कुछ कंडीशंस जो हैं जो उसमें पैरामीट्रिक में हमको कंपलसरी थी, यहाँ कंपलसरी नहीं है। दूसरा, देयर इज नो रिक्वायरमेंट दैट the sample data come from a population with a particular distribution such as the normal sample। तो हमारी ये कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, सही है। बस क्या है कि एक रेंडमली सिलेक्शन होना चाहिए जहां से भी हम सैंपल ले रहे हैं। फिर इसमें कुछ नोटेशंस रहेंगी, जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स द लेस फ्रिक्वेंट साइन अकर्स एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस कंबाइंडली। ओके, फिर इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिस तरीके से हम जेड टेस्ट में टी टेस्ट में लेते थे, जेड टेस्ट की वैल्यू क्या होती थी, टी टेस्ट की वैल्यू क्या होती थी। तो अगर हमारा कब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, कब एक्सेप्ट करेंगे, द नंबर ऑफ आइटम्स द लेस फ्रीक्वेंटली अकर्स देन व्हेन द n इज टोटल सैंपल्स, पॉजिटिव नेगेटिव मींस टोटल सैंपल्स लेस देन 25, इफ ग्रेटर देन 25 देन वी यूज द जेड टेस्ट टाइप्स ओनली। ओके, सो जेड टाइप्स के लिए क्या है, x प्लस 0.5 माइनस n/2 और डिवाइड बाई द n/2। ये हमारे टेस्टिक्स हैं जो हम जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे तो ये हम दोनों यूज करेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज जो है दोनों के लिए अलग अलग होंगी, अगर ग्रेटर देन होगा तो हमारी ये होगी, लेस देन होगा तो ये सारी चीजें जो है आपको एक टेबल में या कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में जब भी हम करेंगे हमको मिल जाएंगे, इसको हमको देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा हम जो एक न्यूमेरिकल लेके आपको सीधा सीधा ले जाते हैं कि एक न्यूमेरिकल है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है। तो न्यूमेरिकल डेटा है कि
use the data in table this with the 0.505% level of significance test the claim that there is no difference between the yield from the regular or some modified seeds are there. Okay, तो दो सीड है, दोनों सीड से जो है हमको कुछ न्यूमेरिकल एजम्पशंस वैल्यूज हैं और उनको हमको टेस्ट करना है. सही है. अब बेसिकली हम देखें अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा ये कुछ नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा होता डेटा, सही है, उसका वेरिएंस चाहे भले ही हमको ना दिया होता, बट अगर पॉपुलेशन इसका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, स्मॉल सैंपल है, तो हम अननोन वेरिएंस के लिए क्या यूज कर सकते थे? टी टेस्ट कर सकते थे. सही है. उसमें अगर उसमें पेयर टी टेस्ट हम यूज कर सकते थे, जैसे कि मैच डेटा है हमारा अगर, सही है, अगर मैच डेटा नहीं है, मैच डेटा हमने कल बताया था कि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो प्री और पोस्ट टाइप से हैं सेम पॉपुलेशन के लिए. ओके, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा ये कैसी पॉपुलेशन सारा वी डोंट नो, तो यहाँ पे एजम्पशंस ये है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से नहीं है. ओके, अदरवाइज सैंपल की जो लेंथ है, सैंपल साइज है, वो इतनी है कि हम टी टेस्ट लगा सकते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर द नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, दैट इज द साइन टेस्ट. ओके, तो अभी यहाँ पे क्या है, डिफरेंस के हिसाब से, अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन दे दिया, अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन दे दिया. ओके, और फिर उसके बाद में हम काउंटिंग कर लेंगे दोनों साइन की, पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने साइंस हैं. हाइपोथेसिस हमारा रहने वाला है यहाँ पे द क्लेम दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यील्ड फ्रॉम रेगुलर एंड अपर, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस हो जाएगा. ओके, दैट इज द मीडियन ऑफ द डिफरेंस इज इक्वल टू 0 एंड द मीडियन ऑफ डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू 0. अब दोनों में हमारे में अगर हम देखेंगे यहाँ पीछे पिछले कितने प्लस साइन है और कितने माइनस साइन है. टोटल सैंपल साइज 11 का है, 11 में से 4 प्लस है, 7 माइनस है. जो x की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, दोनों में से क्या होगी, जो मिनिमम होगा. ठीक है, तो मिनिमम कितना है हमारा, पॉजिटिव साइन मिनिमम में है. ओके, सो देयर आर 7 नेगेटिव साइन और 4 पॉजिटिव साइन. तो क्रिटिकल वैल्यू, इसके लिए एक टेबल है जिसमें से हम देख के 11 सैंपल साइज के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, वो साइन टेस्ट की एक टेबलेटेड वैल्यू है. सही, वहां से हम लिख लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है. ओके, अब इस क्रिटिकल वैल्यूज को किससे कंपेयर करना है हमको, जो x की वैल्यू है. ओके, तो हाइपोथेसिस क्या हो रहेगा हमारा, टेस्ट जो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा. देखिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्रिटिकल रीजन जो डिसीजन रूल होता है वो किस तरीके से हम उसको असाइन करते हैं, कल बताया था मैंने कि जब भी हमारी एक टेबुलेटेड वैल्यू होगी, एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी. तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू है, या फिर पी वैल्यू को किससे कंपेयर करते थे हम, अल्फा से करते थे, है ना. तो चाहे पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करिए या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करिए. तो अभी हमारे पास यहाँ पी वैल्यू नहीं है, हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है और कैलकुलेटेड वैल्यू है. तो इनको जो हम कंपेयर करेंगे तो किस तरीके, तो जो भी अगर क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू है, देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. ओके, अगर लेस देन है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम एक्सेप्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस. वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई, ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू हो गई. कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, कि दोनों का डिफरेंस जो है वो, ये हम लोग नल हाइपोथेसिस क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू 0 है, बट दोनों का डिफरेंस 0 नहीं है. ओके, तो डिफरेंस अगर 0 नहीं है तो फिर क्या है कि दोनों के मीडियंस वैल्यूज हैं वो सेम नहीं है. यानी कि एक रेगुलर सीड से जो यील्ड हो रहा है, जो कमाई हो रही है, और एक मॉडिफाइड से, दोनों में डिफरेंस है. ओके, सो द मीडियन डिफरेंस जो हमारा है, व्हेन द टेस्ट x इक्वल टू 4 एंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ 1, we fail to reject the null hypothesis of no difference. Okay, so that is, there is just not sufficient evidence to warrant rejection of claim that the median of difference is equal to 0. Okay, so sign test कब लगाना है ये तो समझ में आया, when we use the sign test in compare to the parametric test. when we fail to do the parametric, तो पैरामीट्रिक किस तरीके का, सिंगल पॉपुलेशन का, जिसमें चाहे वो जेड टेस्ट हो चाहे टी टेस्ट हो. ओके, सिंगल पॉपुलेशन जो जब पैरामीट्रिक में मीन कंपेयर करते थे, मीन वैल्यू कंपेयर करते थे, नॉन पैरामीट्रिक में मीडियन कंपेयर करेंगे. सही है. दूसरी चीज,
जब सिंगल मीन के लिए अगर हम जो पैरामीट्रिक में जो टेस्ट लगाते हैं वो जेड टेस्ट लगाते हैं या फिर हम टी टेस्ट लगाते हैं मीन कंपेयर करने के लिए, सही है। मीडियन कंपेयर करने के लिए नॉन पैरामीट्रिक में हम साइन टेस्ट यूज करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद में मीन के बाद में जो साइन, जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट में जो दूसरा एक कंपैरिजन था जो हमारा था प्रोपोर्शन का। ओके, जो मैंने कल पी जो हम प्रोपोर्शन ले रहे थे, प्रोपोर्शन के लिए बताया था, तो वहां पे प्रोपोर्शन में की वैल्यू जो हम निकालते थे एक्स आई एक्स डिवाइडेड बाई द एन। ओके, जो भी मीन की वैल्यू होती थी डिवाइड बाई एन करते। यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रोपोर्शन क्या करेंगे, क्योंकि हम मीडियन का कंपेयर कर रहे हैं, वहां पे हम मीन की वैल्यू लेते थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, मीडियन ले रहे हैं। मीडियन कितना होता है, हमेशा किसी भी डेटा का मीडियन क्या होता है, हाफ होता है। मतलब मीडियन जो है डेटा को 50-50% डिवाइड कर देता है। तो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि प्रोपोर्शन मैक्सिमम कितना होता है 1, सही है। तो यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस लिया हुआ है वो इसीलिए 0.5 लिया हुआ है, सही है। तो प्रोपोर्शन में हम ये कंपेयर करेंगे, इसके अलावा बाकी वही प्रोसीजर रहेगा सारा उसी तरीके से। बस मैं इसमें एक डेटा देखता हूँ, उसके बाद मैं आपसे डिस्कशन कर दे। ऑफ द 325 बेबीज बोर्न टू पेरेंट यूजिंग द, ये कोई एक मेथड है, मेथड ऑफ द जेंडर सिलेक्शन से। ओके, 295 वर गर्ल, use the sign test and 0.5 level of significance to test the claim that this method of gender selection has no effect. Okay, दोनों के लिए प्लस माइनस का साइन उन्होंने लिया हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद में मिनिमम जो है एक में 30 आ रहा है, एक में क्योंकि 92-95 दिया हुआ है तो 325 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आ जाएगा दूसरा जेंडर के लिए, फीमेल मेल के लिए। ओके, तो 30 मेल 295 फीमेल्स है, 30 आ गया, सही है। दूसरा इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शन के हिसाब से करेंगे तो 325 बेबीज बोर्न टू पेरेंट यूजिंग दिस मेथड यूज दिस है, तो जेड इक्वल टू अगर हम लगाएंगे, क्योंकि अब जेड इसमें हम इसलिए लगा रहे थे, दूसरा प्रोपोर्शन है और सैंपल साइज भी थोड़ा हमारा बड़ा है। ओके, तो जेड टेस्ट लगाया, जो जेड टेस्ट का टेस्ट स्टेटिस्टिक्स मैंने आपको बताया उस तरीके से। यहाँ पे जेड की वैल्यू -14.64 आ रही है, और जेड टेस्ट जो हमारा नॉर्मली 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्रिटिकल वैल्यू 1.96। सो 1.96 से आप कंपेयर कर दीजिए 14.6 को, सही है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे कि जेड, अब हमने जेड क्यों लिया, उससे पहले हमने साइन टेस्ट लिया। साइन टेस्ट, ये भी साइन टेस्ट है, ओके, बट सैंपल साइज जब हमारा इंक्रीज कर गया तो उसमें हम जेड टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। वो जेड टेस्ट जो था, वहां पे हमने जो जेड टेस्ट की स्टेटिस्टिक होती थी, क्या होती थी, व्हेन जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के म्यू डिवाइड बाई सिग्मा रूट एन। ओके, यहाँ पे क्या है कि मीडियन हम यूज कर रहे हैं, वहां म्यू नहीं यूज कर रहे थे, यहाँ मीडियन कर रहे हैं, तो हर चीज का हमने 50-50% कर दिया। If you see here, we have added the proportion in every sample values and then divide by n by 2. Okay, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, सही है। और ये इस तरीके से स्टैंडर्ड एरर जो निकालते थे वहां पे हम वहीं पे यहाँ पे भी वही स्टैंडर्ड डिवाइड बाई n2 करके देंगे। तो प्रोपोर्शन को निकालने के लिए इसमें जो जेड टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं प्रोपोर्शन के लिए, बिकॉज ऑफ द लार्ज सैंपल साइज, but it's like normally distributed, because we are saying that whenever we have the large sample, पावर -n/2 या सिंपल n-2 इसके साथ में है, पावर में नहीं है, पावर में नहीं है। ओके, yesterday I have shown you that by using the simulation or by using the CLT theorem, if we have the large sample or we starting from small to large sample, the data will going to be become normally. Okay, so that's why here we have the 325 samples, so that's why we using the Z test here only. Okay, और ये प्रोसीजर तो चाहे वो हमारा पैरामीट्रिक का केस ले रहे हैं या नॉन पैरामीट्रिक केस ले रहे हैं, दोनों में इसी तरीके से होता है, सही है। कि रिजेक्शन रीजन होगा एक, हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज जो है एक्सेप्टेंस रीजन में गिरेगी तो हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर उससे बाहर जाएगी तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं।
I have shown here 3 examples by using the sign test. In all 3 examples, I am not explaining all. One I have taken match pair, another I have taken single nominal data, another I have taken just only the that median single population. Okay, so match pair means the our sample will be the same, that is the population in the sample, and we test 2 times, before and after. That is the yield one I have shown you. Another is the nominal data, that is the proportion. Third one is the single population median values we have taken. Okay. Wilcoxon sign rank test for the match pair data. Okay. Have you used this test distribution and this test anywhere? We have heard of, not understood. Okay. Anybody used this test? नहीं यूज करा है. देखिए यहाँ पे एक चीज दे रहा है कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट. तो साइन मतलब इस तरीके जो अभी हमने एक साइन का टेस्ट देखा है और उसमें रैंक, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि मैच पेयर, यानी कि कुछ डेटा हमारा इस तरीके का होगा जैसे कि हम पेयर टी टेस्ट में यूज करते थे. ओके, पेयर टेस्ट में भी हमारा क्या था मैचिंग पेयर डेटा होता था, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन के लिए दो पॉइंट पे हमारा डेटा होता था सेम ऑब्जर्वेशन के लिए. ओके, अब देखते हैं आगे क्या है. The Wilcoxon sign rank test uses rank of sample data consisting of the match pairs. This test is used with a null hypothesis that the population of differences from the matched pair has a median equal to 0. Okay. The Wilcoxon sign test is a non-parameter that use rank of sample data consisting of the match pair. It is null hypothesis वही हो ही गया. The data consists of the match pair that have the been randomly selected, और उसके बाद में the population of differences has a distribution that is approximately symmetric. Okay, meaning that the left half of its histogram is regular to a minor image of the right one. बस symmetric का जो भी normal का symmetric case होता है, there is no requirement that the data have a normal distribution. तो ये जो बार बार हम लिख रहे हैं इस चीज को या कह रहे हैं या कहीं और भी आपको मिलेगा कि there is no requirement that the data have a normal पॉपुलेशन, क्योंकि पैरामेट्रिक में हर केस में हमको ये लेना था, हर केस में नॉर्मल पॉपुलेशन होना चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन होना चाहिए, नॉर्मल पॉपुलेशन. एकदम उसका उल्टा चला गया कि अब यहाँ पे नॉर्मल का कोई जरूरत नहीं है. सही है. बाकी कंडीशन, एक जो सबसे सिंपल वाला कंडीशन होता है वो प्रोबेबिलिटी का, कि जब भी आप कोई सिलेक्शन करेंगे सैंपल का तो वो रैंडमली सिलेक्शन होना चाहिए. सही है. तो वो वही एक एजम्पशन यहाँ पे चल रही है साथ में. बाकी कोई भी एजम्पशन आप देख रहे हैं कोई और ऐसी एजम्पशन नहीं है. ओके, फिर उसके बाद में टी जो नोटेशन साथ में कुछ रहेंगे. देयर इज सम नोटेशन. यस, कि द स्मॉलर ऑफ द फॉलोइंग टू सम्स. ओके, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेगेटिव रैंक ऑफ नॉन जीरो डिफरेंसेस डी, द सम ऑफ द पॉजिटिव रैंक्स ऑफ द नॉन जीरो डिफरेंसेस ऑफ डी. ओके, तो यहाँ पे भी हम क्योंकि रैंकिंग कर रहे हैं और दोनों का डिफरेंसेस को जो है हम जिसमें भी जो मिनिमम होगा उसी डिफरेंस को हम जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू ले लेंगे. ओके, अब देखिए यहाँ पे भी दो केस बनेंगे. एक केस क्या होगा कि जब लेस देन 30 होगा, दूसरा केस होगा जब ग्रेटर देन 30 होगा. अच्छा, वाई वी पिछले टेस्ट में भी हमने दो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स दिखाई थी, इसमें भी दो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों टेस्ट जो हो रहे हैं, साइन रैंक टेस्ट और साइन टेस्ट, ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं जेड टेस्ट और टी टेस्ट के. सही है. तो जेड के भी दो केसेस होते थे और टी के भी दो केसेस होते थे. अगर जब जेड अप्लाई नहीं होगा तो हमारा टी अप्लाई होता था. सही है. क्या होता था कि जब सैंपल साइज स्मॉल होगा तो टी होता था, जब स्मॉल साइज सैंपल साइज बड़ा होगा तो हमारा जेड टेस्ट होता था. ओके, सो उसी इन द सेम पैरेलल मैनर ओनली व्हेन द सैंपल साइज इज लेस देन 30 वी यूजिंग द टी टेस्ट. टी टेस्ट मींस पैरामेट्रिक, हियर इज द स्टैटिस्टिक टी. व्हेन द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30 वी यूजिंग जेड टेस्ट इन द पैरामेट्रिक, हियर द स्टैटिस्टिक्स जेड, सिमिलर नोटेशन बट डिफरेंट formula only. Okay, now the condition here how to perform this test only, because we have the match pair data, so like before and after data is there. So we'll taking yesterday I told you that when we go doing for the pair t test we taking the differences.
here also we'll take the differences. What we'll do, wherever the difference will come 0, we discard that values. Okay, so ignoring the sign of the differences, then sort the differences from lowest to the highest and replace the differences by the corresponding rank values. Okay, when the differences have the same numerical values, assign to them the mean of the rank involved in tie values. तो इसमें पहले हम रैंकिंग करेंगे, अगर रैंकिंग कहीं भी हमारा टाई हो रहा है तो उसको फिर हम मीनियन रैंकिंग से रिप्लेस कर देंगे. ओके, attached to each rank sign difference from which it came, that is the insert those signs that were ignored by in step 2. ओके, फिर उसके बाद में हम उन रैंक्स का सम कर लेंगे, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव बोथ साइड. ओके, let t be the smaller of the two sums found in the step 4. Either sum could be used, but for a simplified procedure we arbitrarily select the smaller of two sums. Okay, so let n be the number of pair of data for which the difference is not equal to 0. So suppose we have the 20 observations, out of 20 suppose 2 have the difference 0, so we discard that 2, so now we have only 18, so we'll count only 18 our observations only, not 20. Okay, they determine the test statistics and critical values based on the sample size as shown the above, and then when forming the conclusion, reject the null hypothesis if the sample data lead to a test statistic that is the critical reason, that is the test statistic is less than or equal to the critical values. फिर उसके बाद में critical reason जो डिसीजन रूल होगा हमारा वो वही प्रोसीजर होगा कि अगर क्रिटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ग्रेटर देन है टेबलेटेड वैल्यू से, then we reject the null hypothesis, otherwise we accept that one. Okay, here again we have used the same data set, whatever that time we used. Now we are taking the differences, that time just only we have mentioned that differences plus signs only, we have not taken the values there only. Now I am taking that values here only. Okay, after taking the values only, then rank of the differences, जो values है उसके according sign को ignore करते हुए, we are not consider the sign. Suppose this -6 is very low value, but ignoring the sign, then 6 is the highest value. Okay, so that's why we ignoring the minus signs and then we giving the ranks only. Okay, so I think there is no identical ranks, and there is no difference, they have the 0. Okay, if you see here the difference, any difference is not 0, and then when we give the ranks, so all the numbers have the individual ranks only. Okay, so there is no tie, there is no absolute difference is 0, so there is no problem to delete any numbers, and there is no need to give the any rank mean ranks. Okay, after ranking again we have assigned the sign corresponding to this one only. Okay, why we are doing this one? Because in this formula we are doing the sum of the ranks only. Okay, so positive signs and negative signs. Okay, so here we have given the steps how we do all these procedures only. Okay, so in table the row differences obtained by computing differences of each pairs, that is d is equal to yield from regular seed minus yield from the kindred seeds. Okay, ignoring the sign we given the ranks. Okay, and then bottom row of the table is created by attaching to rank of the sign with corresponding the differences. तो ये 3 स्टेप्स में जो चीजें बातें बताई गई हैं वो क्या क्या है इस डेटा के लिए? फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड डिफरेंसेस, दिस माइनस दिस. ओके, ये डिफरेंसेस इस तरीके से लिया गया है. फिर उसके बाद में इग्नोर को साइन करके रैंकिंग किया, और फिर उसके बाद में अगेन वी हैव गिवन द साइन करस्पॉन्डिंग टू द दिस वैल्यू ओनली. ओके, जैसे यहाँ पे माइनस था माइनस दे दिया, यहाँ पॉजिटिव था पॉजिटिव, यहाँ माइनस माइनस. ओके, if there
really is no difference between the yield from the two types of the seed, that is our null hypothesis, we expect the sum of the positive rank to be approximately equal to the rank of the absolute values of the negative ranks. सही है कि अगर दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है तो दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो होगा. सही है, अगर कुछ डिफरेंसेस होगा तो जीरो नहीं होगा. ओके, वी now find the sum of the absolute values of negative ranks and we also find the sum of the positive ranks. सही है, पॉजिटिव रैंक्स का सम कर लिया और नेगेटिव रैंक्स का सम कर लिया. दोनों का सम कितना कितना आ रहा है, एक में आ रहा है 51, दूसरे में आ रहा है 15. तो जो हमारा टी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू होती थी स्मॉल सैंपल के लिए क्या कि दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारी टी की वैल्यू हो जाएगी. सो लेटिंग टी बी द स्मॉलर ऑफ द टू सम्स फाउंड इन स्टेप 4, देन वी फाउंड दैट टी इज इक्वल टू 15. Okay, letting n be the number of pair of the data for which the difference d is not zero, so we have total observation. सपोज करिए इसमें से अगर कोई भी हमारा एक डिफरेंस जीरो आया हुआ होता तो हमारा फिर n की वैल्यू कितनी हो जाती, 10 हो जाती. वो एक को पूरा डिलीट ही कर देंगे, उससे फिर हमें कोई लेना देना नहीं है. सही है, जिसका भी डिफरेंस जीरो होगा उस पूरे ऑब्जर्वेशन को हम पूरा अपने डेटा से डिलीट कर देंगे. ओके, ये कॉन्सेप्ट. व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस ओनली द टेबुलेटिव वैल्यू विल डिफर ओनली. अगर n 11 होगा तो डिफरेंट टेबुलेटिव वैल्यू डिफरेंट होगी, 10 होगा तो डिफरेंट होगी, 15 होगी तो डिफरेंट होगा. ओके, so because n equal to 11 we have n less than 30, so we use a test status of t is equal to 15 from table. The critical value for t 11, n is equal to 11, alpha equal to, तो t वैल्यू कितना आ रही है, जो अब यहाँ पे जो t वैल्यू 11 लिख रहे हैं ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है. ओके, सो टेबुलेटेड वैल्यू 11 आ रही है. Now we compare the tabulated value and calculated value. Calculated value कितनी है हमारी, calculated value, ठीक है. अगर कैलकुलेटेड वैल्यू समझ नहीं आ रही इसका मतलब है कि आपको स्टैटिस्टिक्स जो हम फॉर्मूला बता रहे हैं वो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है. मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमम कितनी आ रही है, मिनिमम किसका ले रहे थे, जो हमारा रंग पॉजिटिव और नेगेटिव रैंक का जो सम था उसकी मिनिमम वैल्यू ले रहे थे. 15 आया, तो जो t ये 15 है और t इक्वल टू यहाँ पे अभी हमने कहीं लिख दिया 11, ये दोनों t सेम नहीं है. ये हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है t की और ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है t की. ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो बताइए नल हाइपोथेसिस हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है. इसका मतलब क्या हो रहा है, डिफरेंस है ना. हमारा नो डिफरेंस वाली हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो गई. इसका मतलब डिफरेंस. साइन टेस्ट भी हमको क्या मिला था, डिफरेंस मिला था. इससे भी हमको डिफरेंस मिला है. अब फिर हमने क्यों हम साइन टेस्ट यूज करें और क्यों हम साइन रैंक टर्म टेस्ट यूज करें, है ना. कि वहां से जब हमको एक साइन टेस्ट लगा के भी हमको यही हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया था तो उसको हम यूज करें या इसको यूज करें, सही है. अब ये ज्यादा बेहतर है, बट उसमें क्या है, इसमें क्या है कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होना चाहिए जब डिफरेंस निकालेंगे. उसमें क्या है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं भी होंगी, कैटेगोरिकल वैल्यूज भी होंगी, तब भी जैसे एक वहां पे जो हमने केस शो किया था आपको चिल्ड्रन का, बेबीज का, तो वहां पे कोई वैल्यूज तो होगी नहीं, सिर्फ मेल और फीमेल हो रहा था. तो वहां पे क्या था, हमने मेल को पॉजिटिव मान लिया, फीमेल को नेगेटिव मान लिया, या फीमेल को नेगेटिव मान लिया, मेल को पॉजिटिव मान लिया, है ना. तो वहां पे एक तरीके से आप कर सकते हैं, बट इसके लिए जो है आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी तभी आप डिफरेंस निकाल पाएंगे. ये एक सबसे मेन डिफरेंस है दोनों के उसमें. इसलिए दोनों को बस, बाकी हाइपोथेसिस दोनों केसेस में हमको क्या मिली कि दोनों में नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो रही है. सेम डेटा था, सही है, बट हमारा अब अगर आपको इसके कंपेयर करना है इस चीज को कि हमारा पैरामीट्रिक में क्या होता है, तो पैरामीट्रिक में हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हमारे पास है ना. बस हमको कितना एजम्पशन मानना है कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया है. ओके, अगर हम ये एजम्पशन मान के चले तो इसी डेटा को हम टी टेस्ट के पेयर डेटा से हम जो है कंपेयर कर सकते हैं. यानी पेयर टी टेस्ट लगा के जो है और देखते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या नहीं होगी. सही है, तो ये आप कर सकते हो जब भी आप चाहो इस चीज के लिए. सही है, बाकी सारी चीजें ये रहेगी, सिर्फ हमको एक एजम्पशन मानना पड़ेगी, द सैंपल्स इट इज फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन. सही है, अब ये नॉर्मल पॉपुलेशन से है या नहीं है वो तो हम फिर जब नॉर्मलिटी कंडीशंस को चेक करेंगे तब पता चलेगा. बट अगर एज्यूम कर लें कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन से है, देन वी कैन अप्लाई द टी टेस्ट, दैट इज पीआरटी टेस्ट. ओके, कुछ किसी को पूछना हो इसके अलावा. रैंक का क्यों नाम आया, रैंक पहले में हम रैंक नहीं दे रहे, पहले हम क्या दे रहे थे, है कि नहीं,
साइन दे रहे थे, साइन टेस्ट में क्या कर रहे थे, साइन दे रहे थे, इसमें क्या कर रहे हैं, साइन रैंक कर रहे हैं, यानी साइन भी दे रहे हैं और रैंक भी दे रहे हैं, है ना। सर जैसे अभी जो केस जो लास्ट डिस्कस हुआ उसमें जो रैंकिंग की हमने असेंडिंग ऑर्डर में, अगर उसको डिसेंडिंग में करते हैं तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स बदल देगा? नहीं, सेम ही आएगा, क्योंकि देखिए दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं। आप असेंडिंग ऑर्डर कर दीजिए या डिसेंडिंग कर दीजिए, जिस अगर उसको समझ करिए, एक असेंडिंग ऑर्डर जब आप कर रहे हैं उसको आपने एक्स मान लिया, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं उसको आपने वाई मान लिया, सही है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हो सकता है एक्स मिनिमम आ जाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं हो सकता है वाई मिनिमम आ जाए, आएगा ही, उसका अपोजिट हो जाएगा। शॉर्ट करना है, इसीलिए शॉर्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखा है, शॉर्ट लिखा है। अब चाहे उसको आप लोएस्ट से हाईएस्ट करिए या फिर हाईएस्ट से लोएस्ट करिए। हमने रैंक से पहले कुछ मिस किया था क्या? आपने कुछ कवर किया था रैंक के पहले? रैंक देने से पहले, रैंक वाला स्लाइड के पहले हमने रैंक से ज्वाइन किया यहाँ पे हाँ। नहीं नहीं सिर्फ नहीं, कोई ऐसी चीज मिस भी नहीं है। कैलकुलेशंस बताने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट जो लिखा हुआ है उसको छोड़ के सीधा डायरेक्टली हमने बराबर बताया होगा उसको। तो साइन टेस्ट और साइन रैंक टेस्ट दोनों जो हैं हमारे किसके अपोजिट हैं पैरामीट्रिक में, जेड टेस्ट के और टी टेस्ट के। ओके, वहां पे हम मीन को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम मीडियन को कंपेयर करते हैं। वहां पे हमारी एक मेजर एजम्पशन ये थी कि पॉपुलेशन दैट सैंपल शुड बी कम फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन, यहाँ पे ऐसी कोई एजम्पशन नहीं है। अच्छा वो दोनों केसेस थे हमारे सिंगल पॉपुलेशन के लिए या फिर मैच्ड पेयर डेटा के लिए, सही है। सेम अगर आपको रिमेंबर करेंगे तो जेड टेस्ट में और टी टेस्ट में टू पॉपुलेशन के लिए या टू सैंपल के लिए जो था कि जेड का फार्मूला होता था और टी का भी फार्मूला है, वैसे ही सेम इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ टी टेस्ट और इंडिपेंडेंट ऑफ जेड टेस्ट का। ओके सो विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट इन्वॉल्व मैच्ड पेयर डेटा, जो आपको बताया पहले वही टेस्ट है इसमें। दिस सेक्शन इन्वॉल्व द टू से इंडिपेंडेंट सैंपल्स ओनली। ओके सो प्रीवियस दोनों टेस्ट में हमने क्या करा था, सिंगल सैंपल था हमारा, सही है, या फिर हमारा मैच्ड पेयर था। यहाँ पे क्या है कि हमारा अगर टू सैंपल इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे, ओके, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम लगाएंगे इस पे दैट आर नॉट रिलेटेड और समहाउ मैच्ड ऑफ पेयर डेटा। ओके अब दोनों केसेस के लिए नल हाइपोथेसिस हमारी वहां पे क्या होती थी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। ओके यहाँ पे क्या है, मीडियन हो जाएगा। ओके वहां पे एक हमारी एजम्पशन होती है कि दोनों सैंपल्स जो हैं इज टेकन फ्रॉम ए रैंडमली टेकन है ही और नॉर्मल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिकल पॉपुलेशन से करें, सही है। There are two independent samples are randomly selected. Each of two samples has more than 10 values. There is no requirement that is normally. Okay. फिर इसकी कुछ नोटेशंस हैं जिस तरीके से हम जाएंगे कि साइज n1 सैंपल साइज 1 होगा, n2 सैंपल साइज रैंक होगा, इसमें भी रैंकिंग करेंगे। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, सेम एज R1 सम ऑफ रैंक फॉर सैंपल 1। ओके mean of sample R values that is expected when the two populations have equal medians. Okay standard deviation of the samples values that is expected with two population having equal medians। वहां पे हम एक केस एज्यूम कर रहे थे कि वेरिएंस शुड बी इक्वल टी टेस्ट केस में, सही है। अगर इक्वल नहीं है तो हम इक्वलिटी को हम चेक कर रहे थे यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। ओके ये इसका टेस्टिस्टिक्स होगा, जेड इक्वल टू आर माइनस म्यू आर डिवाइड बाई द सिग्मा, जहाँ पे म्यू आर जो है ये क्या फॉर्मूला है, n1 इंटू n1 प्लस n2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन जो निकालने का फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके n1 द साइज ऑफ द वही हो जाएगा रैंक में, n2 जो दूसरे का हो जाएगा सम ऑफ द रैंक ऑफ द सैंपल विद द n1 साइज n1। ओके
सबसे पहले तो हम कोई एग्जाम्पल जो हमारा है वो देख लेते हैं। सही है, एग्जाम्पल आप लास्ट में BMI मेजरमेंट है मेन का और वुमेन का। ओके, सैंपल साइज दोनों में डिफरेंट है, बट हमने रैंकिंग किया है। रैंकिंग कैसे किया गया है इसमें पूरे में रैंकिंग किस तरीके से किया गया है? दोनों को मिला के रैंकिंग किया गया है, यानी कि पहले हमने एक पूरे सैंपल को कंबाइंड सैंपल समझा है, सही है, और फिर उसके बाद में रैंकिंग स्टार्ट किया, यानी दोनों मेल और फीमेल में जो BMI इंडेक्स जो वैल्यू है वो जिसको सबसे हाईएस्ट है तो उसको हमने फर्स्ट रैंक दी। अब देखिए यहाँ पे चाहे आप हाईएस्ट को 1 दीजिए या फिर लोएस्ट को 1 दीजिए, आप दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट लोएस्ट को ही 1 दिया गया है, लोएस्ट को ही सबसे 1 दिया गया है, सही है। और फिर उसके हिसाब से जहां जहां टाई किया है वहां पे हमने मीन रैंक लेके उसको इक्वल रैंक दे दिया है। ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, सही है। फिर उसके अंदर नंबर इन द ये है वो रैंकिंग है और लोएस्ट से स्टार्टिंग किया है, और R1 एंड R2 एट द बॉटम डिनोट द सम ऑफ रैंक्स। अब क्या गया है कि इसके यहाँ पे जो रैंक है उनका सम कर लिया जिसको हमने R1 का, इधर जो रैंकिंग है वो उसको हमने सम किया उसको R2 कह दिया। ओके, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। नल हाइपोथेसिस यही है कि मीन एंड मीडियन दोनों का मीडियन जो है इक्वल होंगे या फिर अनइक्वल होंगे, यानी इक्वल टू जीरो होगा। रैंक ऑफ ऑल 25 BMI मेजरमेंट्स कंबाइंड, दिस डन इन टेबल, फाइंड द सम ऑफ द रैंक ऑफ आइदर वन ऑफ द सैंपल्स। तो दोनों में से किसी एक का भी अगर हमने लिया है, एक 87 आ रहा था दूसरे का 100 कुछ आ रहा था ना, कैलकुलेट द, अब उसके हिसाब से टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में जो हमको वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालना था, एक म्यू आर निकालना था, एक हमारा सिग्मा आर निकालना था। दोनों को फार्मूला था वहां पे, दोनों को फार्मूला यूज करके हमने ये वैल्यू निकाल ली और यहां से हमारी जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 0.98। ओके, अब देखिए ये हमारा डिसीजन रूल बनने वाला है। Large positive values of Z would indicate that the higher ranks are found disproportionately in sample 1 and a large negative values of Z in the sample 1 के लिए। ओके, we have two tailed test, does not equal to कह रहे हैं तो इसलिए two tailed आया है। so the critical value is 1.96 into 1 minus 1.96, the test statistics of 0.98 does not fall within the critical regions, so we fail to reject the null hypothesis that the men and women have BMI values with equal medians. It appears that the BMI values of men and women are basically the same. किसी कोई इसमें कोई वो हो रहा हो तो वो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। सर ये हमने जो बताया है, ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट हम बता रहे थे कल, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पैरामेट्रिक टी टेस्ट या जेड टेस्ट 2 सैंपल के लिए, इससे पहले मैं थोड़ा डिस्कशन कर चुका था सिंगल वाला। तो 2 के लिए जो उसका नॉन पैरामेट्रिक केस है जिसको हम कहते हैं विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स। तो सिमिलर वे में कि अगर हमारा यही केस होता, जैसे ये हमारा सैंपल था, तो इस सैंपल में हमारा दोनों को मिला के जो डेटा हो रहा है 25 हो रहा है, N1 प्लस N2 को मिला के 25 हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक जो मैंने बताया कि एक ही कंडीशन है जो पैरामीट्रिक में है और उसमें नहीं है, वो है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन का, कि जहां से हमारा सैंपलिंग हो रही है वो नॉर्मल पॉपुलेशन होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं है तो हम डायरेक्टली फिर नॉन पैरामीट्रिक यूज करते हैं, सही है। तो अगर इसी केस में अगर हम ये मान लें कि ये सैंपल्स हैं फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन हैं, तो इसी केस को जो है हम टी टेस्ट से 2 इंडिपेंडेंट सैंपल के टी टेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। बट हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा ये सैंपल जो है नॉर्मल पॉपुलेशन से नहीं आ रहा है, तो इसमें हम फिर विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो हमने बताया था
कि इसमें म्यू और सिग्मा निकाल के जेड इज इक्वल टू आर माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा आर। तो आर की वैल्यूज क्या थी कि सम ऑफ रैंक ऑफ एनी वैल्यूज, और उसके अलावा फिर मीन की वैल्यूज निकाली है और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू निकाली है। ओके, और फिर उसके बाद में टेबुलेटेड वैल्यू से इसको कंपेयर कर दिया गया। फिर क्रुसल वेल्स टेस्ट, ये टेस्ट किस चीज के लिए यूज करा, इसको अगर आपने सुना है किसी ने, किस टाइप के डेटा के लिए यूज करते हैं? देखिए पैरामीटर, इसकी जो पैरामीट्रिक इसका आपको पता है तो पैरामीट्रिक बताइएगा। है अच्छा, थोड़ा सा हम इसका अगर ये करेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि इसका पैरामीट्रिक क्या होगा, है ना। कि एनोवा से पहले जितना भी हम करते थे वो हमारा 2 सैंपल मैक्सिमम होता था, कि अगर 2 सैंपल तक हमारी लिमिट है, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट जो भी है ना। उसके बाद काम हम वही कर रहे हैं, चेकिंग हम वही कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ मीन निकाल रहे हैं, बट 2 से ज्यादा अगर हमारा सैंपल है तो फिर हम एनोवा में जा रहे हैं। अगर हम सपोज करिए एनोवा अगर ना करें और मोर देन 2 सैंपल्स हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, या मोर देन 2 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो कोई एनोवा के अलावा कोई और सोल्यूशन है हमारे पास? हाँ, क्वेश्चन है कि क्या हम कर सकते हैं अगर एनोवा नहीं होता, अगर एनोवा नहीं रहा होगा, जब तक एनोवा नहीं आया होगा, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जा रहा होगा? कि अगर 3 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं तो हम टी टेस्ट कर रहे थे और जेड टेस्ट कर रहे थे, 3 ग्रुप आए, अभी हमारे पास टेक्निकल एक स्टैटिस्टिकल मेथड पता है, एनोवा हम कर रहे हैं। अगर हमको एनोवा नहीं पता है तो 3 सैंपल्स को या 3 ग्रुप्स को हम टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो फिर उसमें क्या टेस्ट अप्लाई करेंगे? देखिए 3 टेस्ट का जिसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा उसके लिए, कोरिलेशन के लिए, कोरिलेशन एक सिंपल कोरिलेशन होता है, फिर उसके बाद में आता है मल्टीपल कोरिलेशन या फिर पार्शियल कोरिलेशन। तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं कि कोरिलेशन तो हम 2 का ही निकाल सकते हैं क्योंकि फार्मूला सिर्फ हमको 2 का ही पता है, बट हम क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, एक्स बाई जेड का एक्स बाई जेड एक्स जेड, फिर उसको कंबाइन करने के लिए पार्शियल का फार्मूला यूज करते हैं या फिर हम मल्टीपल का यूज करते हैं। वो दोनों थोड़ा अलग अलग कंडीशन है। ऐसे ही यहाँ पे है, जब भी आपने एनोवा टेस्ट आप करते होंगे तो एनोवा में जब हमको देखना होता है कि तीनों मीन इक्वल हैं या एटलीस्ट कोई एक डिफरेंट है, सही है, जो हाइपोथेसिस होती है कि μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू 0 और μ1 डज नॉट इक्वल टू μ2 μi डज नॉट इक्वल टू μj, या फिर एटलीस्ट 1 μi इक्वल टू 0, यानी कि कोई 2 ग्रुप तो हो सकता है कि पेयर में हो बट एक किसी के साथ में ना हो पेयर, सही है। जैसे μ1 इक्वल टू μ2 तो है, सही है, बट μ3 जो है उनके इक्वल में नहीं है, सही है। तो जब हमारा नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट नहीं हो जाती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी जब एक्सेप्ट होती है, यानी कि 0 नहीं आ रहा होता, तो हमको ये पता करना रहता है कि कौन सा डिफरेंट है ना। तो जब कौन सा डिफरेंट है तो वहां फिर एनोवा का अपने आप अपना हाथ खड़ा कर देता है कि वो कहता है हम नहीं बता पाएंगे। फिर आपको क्या करना है, आप पेयर वाइज कंपेरिजन करिए, सही है, आप पेयर वाइज कंपेरिजन करिए और फिर देखिए, फाइंड करिए कि कौन से के साथ में इक्वल नहीं है। तो वो पेयर वाइज जो कंपेरिजन करना होता है, क्योंकि हम मैनुअली नहीं करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर करके देता, तो इसको हम कहते हैं बर्नौली टुकी टेस्ट करके है जो होता है, और एक फिशर एक टेस्ट है, सही, जो जिसको है फिशर एग्जैक्ट टेस्ट है, टुकी टेस्ट है, और उसके बाद में सेफर करके कुछ एक टेस्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस 3-4 टेस्ट हैं जो जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, LSD जिसको हम कहते हैं, सही है। तो वो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसमें सिर्फ यही होता है कि मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में पेयर बाय टी टेस्ट अप्लाई होता है, 2-2 का। तो अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं और हमको अगर एनोवा नहीं लगाना है, तो उसका एक तरीका ये है कि हम 2-2 को कंपैरिजन करें, पहले 2 को चेक कर लें, फिर दूसरे चेक कर लें, फिर पहले और तीसरे को चेक कर लें, ओके। बट अब इतना सब लेंदी ये तो चलो 2 की बात है, अगर हमारे पास 10 ग्रुप होंगे तो हम क्या करेंगे, तो फिर वो जर्नलाइजेशन, तो एनोवा इज द जर्नलाइजेशन ऑफ टी टेस्ट एक तरीका से।
अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं क्रुसेल वेल्स टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है किसका, एनोवा का। ओके, सो द क्रुसेल विच uses rank of data from 3 or more independent samples to test the null hypothesis that the samples come from a population with equal medians। ओके, उसमें हम क्या कर रहे थे, वहां पे हम मीन्स चेक करते थे, यहाँ पे हमारा मीडियंस की बात होगी। In that Krusell-Wells test is a non-parametric test that uses rank of sample data from 3 or more independent population. It is used to test the null hypothesis that the independent samples come from a population with the unequal medians। और उसकी हम इस तरीके से null और alternate hypothesis को लिखेंगे। और फिर उसके बाद में इसमें एक चीज है कि जैसे ऑब्जर्वेशंस का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे 5 ऑब्जर्वेशंस इन ईच ग्रुप शुड बी 5 ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए। एक जगह मैं पढ़ रहा था जहाँ पे सिर्फ 3 का लिखा हुआ था, सही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 होंगे तभी हम लगा सकते हैं या 3 होंगे तभी लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, अगर एटलीस्ट 5 नहीं है तो क्या करेंगे कि हम नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। बट वहां पे क्या है कि ये एटलीस्ट अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो हम काई डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके उसकी टेबलेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं, सही है। अगर 5 से कम है तो फिर इसके लिए जो टेबल यूज होती है टेबलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो यूज होती है जो मैन विटनेस टेस्ट के लिए यूज होती है। ओके, तो एटलीस्ट 5 इसने लिखा है किसके साथ में, काई स्क्वायर के साथ में। कुछ बुक्स में आपको लिख जाएगा ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ, तो ग्रेटर देन 3 सैंपल्स हैं तो काई स्क्वायर की टेबल को आप यूज करके और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ में और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में जो टेबलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर की होती है वही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए काई स्क्वायर की हम ले रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे k-1 है। k क्या है हमारा, नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं तो कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम विद द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 है, तो जो काई स्क्वायर की वैल्यू आ रही होगी वही यहाँ पे हमारी टेबलेटेड वैल्यू यूज होगी। बस इतना है, क्योंकि इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर 5 ऑब्जर्वेशन से कम है तो हम क्रुसेल-वेल्स टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। तो फिर तो ये तो है ही इसीलिए कि जब स्मॉल सैंपल साइज हो हमारा। ओके, सो इसकी कुछ ये एजम्पशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि विच हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एज लॉन्ग एज ईच सैंपल हैज एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। ओके, when we use the chi-square distribution in this context, the number of degree of freedom is k-1, where k is the number of samples। Okay, और फिर उसके बाद में कि हमारे पास मिनिमम 3 सैंपल्स से मतलब वही हो गया कि जैसे 3 ग्रुप। ओके, and each sample has at least 5 observations, there is no requirement the population should be the normal distributed। फिर उसके बाद में नोटेशंस हैं कुछ हमारी। ओके, that is the total number of observation in all observations combined, so n1 plus n2 plus n3 is equal to capital N। okay, k is the number of samples or it may be the number of groups, or it may be the number of groups, r1 the sum of rank for sample 1, n the number of observation in the sample 1। for sample 2 ये प्रोसीजर sample 2 के लिए भी हो जाएगा और इससे आगे वालों के लिए भी हो जाएगा, नोटेशंस डिफरेंट हो जाएगी। ये इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है जो हम यूज करेंगे कि 12 डिवाइड बाई कैपिटल N इंटू n-1, r1 स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस r2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस प्लस डॉट डॉट जितने भी ग्रुप्स जितने भी सैंपल्स होंगे उन सारी की रैंक है। अगर 2-3 है तो 3 टाइम्स r का फॉर्मूला जाएगा, अगर 4 है तो 4 टाइम्स जाएगा, 5 है तो 5 टाइम्स जाएगा। ओके, क्रिटिकल वैल्यूज इसकी किस तरीके से टेस्ट इज राइट टेल देन डिग्री ऑफ फ्रीडम k-1 बिकॉज द टेस्ट स्टेटस h कैन बी अप्रोक्सीमेटली द chi square distribution, so use the table chi square table। ओके, तो इसमें रैंकिंग फिर वही उसी तरीके से करना है, पहले हम कंबाइंड सारे ऑब्जर्वेशन को कंबाइन करेंगे और फिर स्टार्टिंग करेंगे रैंकिंग भी करना। ओके, सो कंबाइन ऑल ऑब्जर्वेशन इनटू वन बिग सैंपल एंड असाइन ए रैंक टू ईच सैंपल। फॉर ईच सैंपल फाइंड द सम ऑफ रैंक्स एंड फाइंड द सैंपल साइज। ओके, कैलकुलेट h for the by using the step 2 and the notation test status given on the preceding slides। So the test status h is basically a measure of the variance of the rank sums, that is r1 to rk। if the ranks are distributed evenly among the sample group then h should be a relatively small numbers। तो जो h की वैल्यू होगी वो हमारे अगर r1 n1 सैंपल के लिए, n2 सैंपल के लिए और n3 सैंपल के लिए निकालें, उसमें जो जिसकी मिनिमम होगी वो हम लेंगे। ओके,
If the samples are very different, then the ranks will be extremely low in some groups and in high in the others. So with the net effect that H will be the large only. अच्छा, ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल है जो हमको लिया हुआ है. द वेट्स ऑफ द पॉपुलर ट्रीज गिवन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. ओके, नंबर इन पैरेंथेसिस दैट इज द रैंक्स. तो ये कुछ फर्टिलाइजर्स उनको ट्रीटमेंट के तौर पे दिया गया, एक हमारा क्या है कि कंट्रोल ग्रुप्स टाइप्स का बना हुआ है. ओके, कि हमने कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया, फिर एक कुछ फर्टिलाइजर दिया, इरिगेशन दिया, एरोशन और उसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. ओके, हर एक में सैंपल 5-5 का शायद है. तो रैंकिंग जो हमने की है, पहले सबसे पहले रैंकिंग कैसे बताया था, करेंगे कंबाइंडली रैंकिंग करेंगे. लोएस्ट को सबसे आई थिंक 1 दी होगी. कितने 1 कहाँ पे है, कहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, 1.5, यानी कि कहीं पे ये पॉइंट जो है हमारा डबल टाई हो रहा है. 0.2 टाइम्स आ रहा है क्या, 0.2 टाइम्स आ रहा है. सही है, ये एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है. तो इन दोनों की रैंक, इसको सपोज करिए 1 है, इसको 2 है, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 1.5 रैंक हो गया. सही है. तो जहां भी रिपीटेड पॉइंट में अगर रैंक लिखी है, इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशंस कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं. ओके, सारी रैंकिंग कर दी. फिर उसके बाद में जब हम रैंक का सम करेंगे, तो फिर इंडिविजुअल सैंपल्स का इंडिविजुअल ग्रुप्स का रैंक करेंगे. R1 की वैल्यू 45, R2 की 37.45 to 85. ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी तरीके कोई प्रोसीजर में? देखिए, ये सब हमको मैनुअल तो खैर नहीं करना है. ओके, हमको सिर्फ समझना ये है कि हम कभी यूज कर रहे हैं और कैसे यूज करना है. सही है. और इसका जो है हमें इंटरप्रिटेशन किस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये सब तो अब कोई स्टूडेंट तो है नहीं MSc और BSc वाले जिनको ये करना है. सही है. तो ये तो सारा हमको करके देगा कौन, सॉफ्टवेयर, जब भी आप अपनी रिसर्च में यूज करेंगे. बट हमको बस इतना जानना है कि हमको कब यूज करना है और किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है और हमको ये क्या चीज वैल्यू देता है. ओके, बस मैंने एक मैनुअली दिखाने के लिए कि अगर आपको पता होना चाहिए सॉफ्टवेयर में भी किस तरीके से कैलकुलेशन चल रही होंगी. ओके, तो इसमें जो है जेट टेस्ट को यूज करेंगे टेबलेटेड वैल्यूज निकालने के लिए. तो n1 = 5, n2 5, n3 5, ऑल 5, सो n = टोटल 20. R1 की वैल्यूज, चारों R1 की वैल्यूज हो गई. स्टैटिस्टिक्स में चारों चीजें रख देंगे हम फार्मूले में, और इसकी टोटल फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है H = 8.214. ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी हमारी, के कितना था, कितने सैंपल्स थे हमारे पास, 4 सैंपल्स थे, तो 4 हो गई, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई. और अल्फा की वैल्यू 0.5 है. तो chi² की वैल्यूज टेबल देख के हम ये वैल्यू निकाले हैं, जो वैल्यू है 37.815. ओके, और इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है H की. तो अब क्या हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है टेबलेटेड वैल्यू से. कैलकुलेटेड वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग है, टेबलेटेड वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग है. तो हम वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल मीडियंस. तो इसका मतलब क्या है कि मीडियंस इक्वल नहीं है, यानी कि मीडियन M1, M2, M3 और M4 जो है इक्वल नहीं है. अब इसका इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कोई हो सकता है कोई एक इक्वल हो, जैसे M1 M2 इक्वल हो बट M3 और M4 इक्वल ना हो, है ना. तो इसके बाद एनोवा में हम क्या करते हैं, चाहे वो पैरामेट्रिक एनोवा हो चाहे नॉन पैरामेट्रिक एनोवा हो, जब भी हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, फिर हमको कहाँ जाना है, फर्दर मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट में. सही है. तो हर सॉफ्टवेयर में एनोवा के साथ में मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट परफॉर्म करने का मेथड है, आप कौन सा मेथड परफॉर्म करना चाह रहे हैं. सही है. उन मेथड्स के भी पूरा एक डिटेल वो हो जाएगा, डिस्कशन है वो, मैंने उसको लाया नहीं हूँ यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, जिसको हम मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं. उसमें बहुत सारे टेस्ट पैरामेट्रिक केस में भी हैं और बहुत सारे नॉन पैरामेट्रिक केस में भी हैं. ओके, तो अब इसके बाद यहाँ से अगर हमको ये हमारा रिजेक्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. ओके, उसके बेसिस पे हमको क्या पता चलेगा, व्हाट द इंफॉर्मेशन दैट मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट विल गिव अस. कौन सा दो ग्रुप सिमिलर और डिफरेंट, कौन सा सिमिलर तो नहीं है, ये तो हमको पता चल ही गया. कौन से सिमिलर नहीं है, क्योंकि कुछ एक दो तो ऐसा है जो सिमिलर नहीं है, बट कौन सा सिमिलर नहीं है. जैसे अभी हमारे पास 4 सैंपल थे. सही है. सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4. अब इसमें से कोई एक दो सिमिलर भी हो सकता है या चारों डिफरेंट हो सकते हैं. सही है. तो जो एटलीस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, एटलीस्ट एक भी ऐसा होगा जो सिमिलर हो, या एटलीस्ट ऐसा होगा एक ऐसा होगा जो सिमिलर नहीं है. 3 सही हो सकते हैं, एक नहीं होगा. तो उसमें क्या करेगा, सैंपल 1 का सैंपल 2 के साथ कंपेरिजन करेगा.
सही है। तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसमें बनते हैं, यानी कि जो हाइपोथेसिस है हमारी, उस हाइपोथेसिस के कॉम्बिनेशन बनेंगे, x1 का x2 के साथ में, फिर x1 का x3 के साथ में, फिर x1 का x4 के साथ में, फिर x2 का x3 के साथ में, x2 का x4 के साथ में, फिर x3 का x4 के साथ में, और x4 का तो फिर किसी के साथ में नहीं, क्योंकि x4 तो ऑलरेडी बन ही चुका है। सही है। तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, पहले के साथ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 3। सही है। x1 का x2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 3 हो गए। दूसरे में 2 बनेंगे और तीसरे वाले के साथ में 1 बनेगा। तो 3 2 5 1 6 कॉम्बिनेशन टोटल होंगे। तो एक तरीके से हमारी हाइपोथेसिस हो जाएगी 6 हाइपोथेसिस होगी अब। सही है। तो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है बेसिकली, मैं यहाँ लाया नहीं बट मैं आपको बता देता हूँ उसको, बस उसमें क्या एडजस्टमेंट होता है। इसको मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट को अगर थोड़ा सा और वैसे करके कहें तो इसको हम कहते हैं करेक्शन फैक्टर। उसमें क्या होता है कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम ले रहे हैं, जो पी वैल्यूज ले रहे हैं, वो एडजस्टेड की जाती है। सही है। पी वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद में फिर हम कंपेयर करते हैं। अगर पी वैल्यू को एडजस्ट नहीं करेंगे तो अभी हमारी पी वैल्यू जो हो रही थी वो कितनी